students, we meet again to discuss the JEE practice paper round 1. We'll be discussing all the questions and the solutions to it. The stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium and thallium increases in the sequence. The correct option is 2 because these are all P block group 13 elements. So as we go down the group, if you look at thallium, its electronic configuration will be the valence shell will be 6s2 and 6p1. The valence electrons fill in the inner shells first, and though the atomic size as we go down the group increases, there is no relative increase in the, though the atomic number goes on increasing as we go down the group, there will be no relative increase in the atomic size because of the inert ion effect, inert pair effect. The valence electrons will be, the 6s2 will be pulled more towards the nucleus as the size of the atom has decreased, and so PL will show the highest +1 oxidation state, stability in +1 oxidation state. Okay, then comes the indium, then gallium and then aluminium. Then the next question, if the Kp-Kc ratio will be the highest in case of, these are the 4 options that are given. आपको relationship पता है, Kp और Kc के options relation is equal to Kp is equal to Kc RT raised to delta n, ये relation आपको पता है. अब ये चारों जो रिएक्शंस आपको दी हुई हैं, इन चारों रिएक्शंस में आपको क्या करना है, डेल्टा एन निकालना है. तो अगर आप डेल्टा एन निकालोगे तो आप रेशियो जो है केपी और केसी का जो रेशियो है वो आप किस में हाईएस्ट है वो निकाल सकते हो. तो सिर्फ हमको क्या निकालना है, सिर्फ हमको हर एक इसके लिए डेल्टा एन निकालना है. तो हर एक क्वेश्चन रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा एन निकाला. डेल्टा एन कैसे निकाला, गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स. अब ये जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 0 गलत दिया हुआ है, 2 - 1 is 1. सो हाईएस्ट डेल्टा एन जो है वो सी वाले रिएक्शन के लिए है. ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज 1 फॉर ऑप्शन दिस रिएक्शन 3. ठीक है, फिर इंक्रीज इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये रिएक्शन है एनालीन diazotization. First gives the benzene diazonium chloride and when reacted with CuCl it will give you chlorobenzene. So इसका जो B product है वो है chlorobenzene. ठीक है, option is chlorobenzene. Then nylon threads are made up of, ये आपको पता है, nylon is a polyamide polymer and hence option is 2. AgCl is soluble in NH4OH, ये भी आपने पढ़ा है that it forms a complex. Okay, so option 3. अब ये जो plots हैं, these plots are of the temperature T, okay, plotted against the rate constant K. These are the plots of Arrhenius equation. You know that this is the Arrhenius equation where the rate constant K increases exponentially with temperature. अगर आप इन चारों ग्राफ्स में देखते हैं, there is an exponential increase only in this graph. So the option is 1. Now phenyl magnesium bromide reacts with tertiary butanol. The product would be chemical organic chemistry में आपको पता है methyl magnesium bromide when it reacts with the active hydrogen. ठीक है, Grignard reagent that containing active hydrogen to form hydrogen, it forms hydrocarbons, I'm sorry. So this Grignard reagent phenyl magnesium bromide will form a hydrocarbon when it reacts with the tertiary butanol, and the hydrocarbon that it forms here is benzene. This is option 1. Bear with me if I'm not good at organic chemical numericals. Thengnes sir will be more appropriate in explaining the organic reactions to you. The following sets which does not contain isoelectronic species, आपको पता है सबके आपको isoelectron निकालने पड़ेंगे, number of electrons, तो वो आप निकालोगे, हमने निकाल के रखे हैं. तो ये ऑप्शन 2 जो है CO3 2- और NO3- के 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
SO32 माइनस के 42 हैं, तो यही एक पेयर है जिसमें सब स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है. So the option is 2. Then boron has two stable isotopes. B10 वाला जो है वो 19% है, B11 वाला 81% है. एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 19% है. किसका है? B10 का है. और B11 का रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 81 है. तो दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 100 करो, तो आपको मिल जाएगा उसका एवरेज एटॉमिक वेट, दैट इज 10.8. सो द ऑप्शन इज 1 हियर. अब ये जो है यहाँ पे E0 Cr3 प्लस Cr की वैल्यू दी हुई है, E0 Fe2 प्लस बाय Fe की वैल्यू दी हुई है. तो पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये वाली सेल रिप्रेजेंट उन्होंने की है. इस सेल ये जो सेल रिप्रेजेंट की है, तो दोनों केस में कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं. आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखनी है, आपको रिडक्शन हाफ सेल लिखनी है, फिर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड ये देखना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, और ये सब करने के बाद आपको ई सेल निकालना है. ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ, अब जो आप रिएक्शन लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन है. ये अगर आप सब वैल्यूज डालते हो तो ऑप्शन जो आपको आता है वो ऑप्शन है 4, if you put all the values. क्लियर? ठीक है. और E0 सेल जब निकालना है तो आप क्या करोगे? कैथोड माइनस एनोड. अब ये है इस कंपाउंड को उन्होंने कहा है वो कौन से आइसोमर्स एग्जिबिट करता है. तो एक तो यहाँ Cl है, तो इट विल हैव द लिंकेज आइसोमर, सॉरी Cl है तो इट विल हैव एन आयनाइजेशन आइसोमर. अब NO2 जो है वो दो फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं. एक तो NO2 ऐसे लिख सकते हैं या ONO लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है ना, ONO. जब ONO लिखते हैं तो यूजुअली कौन से आइसोमर्स फॉर्म होते हैं? लिंकेज आइसोमर. यू कैन राइट इट एज दिस इज अ लिंक. सो ONO जिसमें रहता है वो लिंकेज आइसोमर्स फॉर्म करता है. Cl जिसमें रहता है वो आयनाइजेशन आइसोमर्स फॉर्म करता है. ठीक है, और ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस, ये दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. तो ये वाला जो कंपाउंड है वो आयनाइजेशन आइसोमर्स भी फॉर्म करता है, वो आयनाइजेशन आइसोमर फॉर्म करता है, वो लिंकेज आइसोमर फॉर्म करता है, और वो ज्योमेट्रिक आइसोमर फॉर्म करता है. इसीलिए इसका ऑप्शन है 1. Among the following acid which has the lowest pKa value, तो आपको पता है pKa is equal to log minus log of Ka. तो pKa लोएस्ट चाहिए, तो इसका मतलब Ka वैल्यू हाईएस्ट चाहिए. तो इसमें से आपको Ka वैल्यू अगर हाईएस्ट देखनी है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है देखना है. तो इसमें से ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. सो इफ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दिस Ka will be high, Ka will be high, and then the pKa value will be low. Match the following. अब match the following में आपको बारित्रिया वाटर एंड हाइड्रोलिथ. इवन इफ यू डोंट नो, बारित्रिया वाटर हमने एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोलिथ हमने पूरे जेई में कभी मेंशन नहीं किया था, पर ये वाटर मैंने बेरियम हाइड्रोक्साइड मेंशन किया था एस ब्लॉक पढ़ाते वक्त. ठीक है, तो क्विकलाइम आपको पता है CaOS, क्विकलाइम पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. इवेंचुअली आप ऑप्शन 4 टिक कर सकते हो. ये दो इस पे ही आप ऑप्शन 4 टिक कर सकते हो. Where toluene reacts with excess of chlorine in presence of sunlight. So they have written down the reaction. The chlorine is reacting with excess of Cl2 to form this. When reacted with HOH, it forms this, and with NaOH, it forms a sodium. Okay, salt. Option is 2. This is the sodium salt. Okay. Which of the following does not represent the radius of the atom correctly? मैंने कहा था एज लेंथ और रेडियस सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर क्या याद रखने हैं. और MHCT केस में भी हमने ये फेस सेंटर वाला रेडियस और एज लेंथ रेशियो देखा था. ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है.
ठीक है, तो ऑप्शन 3। फिर ये वाले रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH है, यहाँ अल्कोहलिक KOH है ना, तो अल्कोहलिक KOH विल ऑलवेज गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर भी आपको बाकी के रिएक्शन प्रोडक्ट्स याद नहीं है, अल्कोहलिक KOH वाली जो रिएक्शन है, इट विल ऑलवेज गिव राइज टू अ double bond, and the only double bond present is in this. So there are ways and tricks by which you can identify the options. Then one mool of magnesium nitride. So magnesium nitride की जो रिएक्शन है नाइट्रोजन फैमिली में, ये आपको आनी चाहिए। वाटर के साथ वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और अमोनिया रिलीज करता है। ये अगर आपको आता है, याद रहता है, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के बाद आप ये लिख सकते हो 1 मोल और 2 मोल डिपेंडिंग ऑन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ऑप्शन इज 2। देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, इसके सबके आपके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट फैक्ट कौन सा सही है। ऑप्शन 3 ये फैक्ट हम पढ़ते आए हैं, जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव द सेम रेडियस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर 19 KMnO4 acts as an oxidizing agent ultimately to form these। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सब दिए हुए हैं, ठीक है, कितने लॉस है इलेक्ट्रॉन्स सब इसमें, तो ऐसे होके ऑप्शन आता है 3। देन द फॉलोइंग कंपाउंड आपको पता है, ये एस्प्रिन है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। सो न्यूमेरिकल इस टाइप के क्वेश्चन में अब ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन निकालना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है -119.5। तो यहाँ पे साइक्लो बेंजीन में 3 हाइड्रोजन है, तो अगर 3 हाइड्रोजन है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो पूरी जो एंथैल्पी आ जाएगी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजनेशन की इन साइक्लोहेक्सीन विल बी -358.5। तो जब आपको एंथैल्पी निकालनी है तो आप क्या करोगे, द कैलकुलेटेड एंथैल्पी माइनस द रेजोनेंस एनर्जी, ये निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा, माइनस करनी है रेजोनेंस, टोटल एंथैल्पी कैलकुलेटेड से रेजोनेंस माइनस करनी है, तो आपको निकल जाएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, फिर 27 ये तो आपको पता है, ठीक है, हम बहुत बार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। now here for isothermal delta E is 0, if delta E is 0, delta E is equal to Q and therefore W is minus this। तो ये बहुत बार हो चुका है, I'm not explaining, ये भी बहुत बार हो चुका है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आती है +6। ठीक है, ये कर चुके हो आप, स्टेट बोर्ड के लिए भी कर चुके हो। ठीक है, अब द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस इन दिस पर्टिकुलर, तो हर वक्त आपको कितनी रिएक्शंस पढ़नी पड़ी, ये फर्स्ट एल्डोल है, ये सेकंड एल्डोल है, ये थर्ड एल्डोल है, and then this results in a Cannizzaro reaction, so there are 3 aldol reactions in this particular solution। ठीक है, so 25 how many compounds give positive iodoform test, आपको पता है iodoform test क्या है। iodoform test is usually given by with ketones, that is the enol form, and alcohols, and those alcohols which possess CHOH groups। ठीक है, iodoform test is the positive test, in the laboratory it gives you a pale yellow color, and the pale yellow thing that is formed, it gives you an antiseptic smell थोड़ी सी। तो इसमें से अगर आप देखते हो ऐसे 3 ग्रुप्स हैं, जो मिथिल कीटोन है और जिसमें CHOH है। सो योर आंसर इज 3। ये जो लास्ट वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है और फिर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस पे। तो marking scheme +4 for a correct answer, 0 if not attempted and 0 in all other cases। ये वाला जो सेक्शन है it contains 5 questions। ठीक है, तो ये नया टाइप है, तो ये आप ठीक से करके जाओगे, सब इजी है पेपर। you have to study hard and do a lot of practice। आई होप दिस इज नॉट फास्ट, मैंने फास्ट किया क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का मेरा स्लॉट था जिसमें मुझे ये वीडियो फिट करना है। अगर आपको लगता है कि ये फास्ट है तो नेक्स्ट इसमें मैं इसी वीडियो को 2 इसमें स्प्लिट करूंगी, पर आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं तो आप आराम से इनको घर में पढ़ के आप देख सकते हो। ठीक है ना, सो
Bye then. Thank you.